السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اپنے آج کے پروگرام میں ہم جس اہم ایشو کی طرف بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے ہے۔ یونیورسٹی ٹاؤن ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے اور یہ 1992 میں لانچ کی گئی تھی۔ آج ہم ان سے ان کے مسائل جانیں گے اور جانیں گے کہ یہ سوسائٹی ان کو یہ ساری سہولیات کیوں نہیں پرووائڈ کر رہی ہے، اور جو اس کے آنر ہیں ان کی کیا ایسی نااہلی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سوسائٹی اتنے ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں یہاں کے رہائشیوں سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ہارون رشید ہے۔ اچھا، مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جو یونیورسٹی ٹاؤن ہے یہاں پر جیسے اس وقت ہم یہ فلٹریشن پلانٹ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو یہاں کے رہائشیوں سے اس کے بارے میں بھی کافی شکایات سنی ہے کہ یہاں پر صاف پانی پرووائڈ نہیں ہوتا جبکہ یہ پینے کا پانی ہے، تو اس کے بارے میں جو بھی تفصیل ہے آپ اس سے آگاہ کریں۔ جی ایسا ہے کہ یونیورسٹی ٹاؤن راولپنڈی بہت سب سے پرانی سوسائٹی ہے راولپنڈی اسلام آباد کی۔ یہ 2006 سے جو ہے یہ اس کا سٹارٹ ہوا ہے، اس کو NOC ملی ہے RDA سے۔ یہ A بلاک کا فلٹریشن پلانٹ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی یہاں تو پانی فی الحال تو ہے ہی نہیں، پانی آتا ہی نہیں ہے، کبھی کبھار آتا ہے۔ اب جب پانی آتا ہے تو وہ اتنا اسمیلی ہوتا ہے اور وہ اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہوتا ہے، اس کا کلر بھی جو ہے وہ اپنے صحیح کلر میں نہیں ہوتا۔ پلس اس کا کوالٹی انڈیکس اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اگر چیک کرایا جائے تو وہ بھی یقیناً مضر صحت ہوگا، بیماریاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں ہم رہائشیوں کے لیے۔ اور یہ انتہائی مطلب اس کا جو لیول ہے گراؤنڈ سے جو پانی لینے کا ڈیپتھ ہے وہ بھی کم ہے، اور اس وجہ سے اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہے اس پانی۔ یہ ایک فلٹریشن پلانٹ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں؟ جی میڈم، یہ صرف ایک فلٹر پلانٹ اس A بلاک کے لیے ہے، اور یہاں پر 650 سے 700 فیملیز جو ہے وہ رہ رہی ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک تو ناکافی بھی ہے، پلس اس کا کوالٹی انڈیکس مضر صحت پانی جو ہے نا وہ یہاں یہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ سول رسپانسبلٹی ہے سوسائٹی ڈیولپر کی کہ وہ واٹر اس کے اگینسٹ میں اس نے ڈیولپمنٹ چارجز ہم سے جو ہے وہ کاسٹ اس نے سب ریزیڈنٹس نے سب پلاٹس کے اگینسٹ میں ہم نے کاسٹ پے کی ہے A بلاکس کے ریزیڈنٹس نے، پوری یونیورسٹی ٹاؤن نے، بٹ اس کے اگینسٹ میں جو امینٹیز ہیں اور سروسز ہیں یہ سوسائٹی ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہی، اور RDA کی اس کے اوپر مجرمانہ جو خاموشی ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ اتنی بیسک چیز ہے، ضرورت ہے زندگی کی، اگر وہاں سے ہی ابتدا بیسک پانی جو ہے نا وہ اگر پینے کا صاف پانی پرووائڈ نہیں کر سکتے تو باقی آپ روڈ اسٹریٹ کارپیٹنگ، یہ آپ کے گھاس کٹنگ، یہ سب پھر اس کے بعد کی چیزیں ہیں۔ یہ مضر صحت پانی ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ آتا ہی نہیں ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کلر بھی ٹھیک نہیں ہے، کوالٹی انڈیکس اس کو اگر آپ چیک بھی کریں گے تو یہ بالکل امپیور قسم کا واٹر ہے جو ہمیں پلا رہے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں، معدے کی، گردوں کی پیشنٹس جو ہیں نا وہ کریٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، میں اپنے گرد و نواح میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے اپنے ارد گرد یہ بہت زیادہ گھاس بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اتنے زیادہ یہ پودے ہیں یہاں پر۔ آج کل تو ڈینگی کا بھی موسم ہے، تو ڈینگی کی افزائش کا بھی یہ باعث بن سکتا ہے۔ پلس یہ کہ ایک رہائشی اسکیم میں اس طرح سے اتنا زیادہ یہ جنگلی پودوں کی افزائش جو ہے یہ تو موذی جانوروں کی آماج گاہ بھی بن سکتی ہے، اور اس طرح سے وہ باہر نکل جیسے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، یہ تو رہائشیوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کی کٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں ہے؟ جی میم، آپ بالکل آپ کی یہ جو کنسرن ہے نا بالکل ہمارے سیم اسی طرح کنسرن ہے کہ یہ تو گراس کٹنگ کی بات آپ کر رہی ہیں۔ گراس آپ کے سامنے ہے کہ جو ہے نا پورے 6-7 فٹ کی گراس جو ہے نا اور بڑی بڑی جھاڑیاں جو ہے وہ آپ کو پوری سوسائٹی میں جنگل کا منظر پیش کر رہی ہیں، حالانکہ اتنی آبادی ہے، اور یہ اس کے ڈیولپمنٹ چارجز انہوں نے لیے ہوئے، اس کے اگینسٹ میں کنزروینسی بل پے کر رہے ہیں لوگ، لیکن انفارچونیٹلی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کا۔ وہ بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ تنگ ہو کے سیل کر دیں اور یہاں سے نکل جائیں، لیکن اب اتنے لوگ رہائش اب جو آپ بات کریے ڈینگی کی، تو آگے آپ دیکھیں گی کہ وہاں بڑے بڑے جو ڈیگز ہیں اور ان کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اور اس پانی کے اندر مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے، اور وہاں سے ڈینگی بالکل پھیلتا ہے۔ اور اوپن نالے پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ سامنے آگے دیکھیں گے تو بالکل اوپن نالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیوار نہیں، مینول اوپن پڑے ہوئے ہیں، سیوریج کے مینول اوپن پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی سول رسپانسبلٹی ہے، کوئی ان کا میکینزم نہیں ہے۔ جو ان کے پاس ملازمین تھے کچھ جو ہے وہ ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا ہے۔ بس اس سوسائٹی کے ڈیولپر جو ہے نا ان کے ہمارے نصیب میں یہ آ گئے، اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ منسٹری آف ہاؤسنگ کو پوچھنا چاہیے، RDA کو پوچھنا چاہیے، وہ ریگولیٹر ہے، اس کے اوپر ان کی خاموشی جو ہے وہ معنی خیز ہے۔ یہ سر دیکھیں کہ میم اس میں بالکل پانی یہ نہیں آ رہا، بالکل کسی ٹیپ میں یہاں پانی نہیں آ رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ پانی یہاں آتا ہی نہیں ہے۔ آپ
सब कंडीशन से देख सकते हैं। और दूसरी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, और जब कभी आता भी है तो उसका टेस्ट ही जो है वो पीने के काबिल नहीं होता है, इतना मुज़र सेहत किस्म का पानी। जी नाज़रीन, आप ये मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक नाला है। ये नाला यहाँ पर बह रहा है और इसके दोनों साइड्स पे किसी किस्म की कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई जो यहाँ के रिहायशियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके इस नाले से। बरसात के मौसम में, बारिश में जब इस नाले में पानी भरेगा, ओवरफ्लो होगा, तो यकीनन यहाँ के लोगों के लिए खतरे का बाइस बनेगा, क्योंकि इसी तरह की जब अगर बाउंड्री वॉल्स ना बनाई जाए नालों के इर्द गिर्द तो हादसात रूनुमा होते हैं, गाड़ियां इसमें डूब सकती हैं, लोग इसमें डूब सकते हैं। जबकि यहाँ पर यहाँ तक है कि यहाँ इस नाले से सांप, बिच्छू और दीगर खतरनाक कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं जो इन रिहायशियों के घरों में जाकर इनको नुकसान पहुँचाने का सबब बन रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर डेंगू की अफजाइश है जो बेपनाह हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक तो बाउंड्री वॉल का बनना बहुत ज़रूरी है, जिस पर सोसाइटी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही, और ये मुमकिन तौर पर ये मुस्तकबिल में किसी न किसी हादसे का सबब बन सकती है अगर इसकी बाउंड्री वॉल को ना बनाया गया तो। नाज़रीन, आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं कि एक मस्जिद का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, और ये भी मस्जिद यहाँ की जो सोसाइटी के जो रिहायशी हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाई है, सोसाइटी का कोई रोल नहीं है इसमें। हमारे साथ एक रिहायशी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि ये इस हवाले से किस किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल अहमद काजी है। क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? मस्जिद कमेटी जो है ना उसका मैं मेंबर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये मुझे कुछ देर हुई है यहाँ आए हुए, लेकिन यहाँ के रिहायशी 3-4 साल से ना तो बड़े तंग थे। यहाँ एक छोटा सा बराए नाम से स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती थी। इवन बारिश में लोग बारिश के अंदर नमाजें पढ़ रहे होते थे, ठीक है। अब रिहायशियों ने मिल के उनके पास गए, जाके कहा जी खुदा के लिए आप लोगों ने पैसे लिए हैं तो मस्जिद बना दें। 30 साल से कोई मस्जिद नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी हमने कोई मस्जिद नहीं बनानी। फिर रिहायशियों ने कहा कि चलें फिर ठीक है हम खुद बनाते हैं। जब हमने खुद सोचा बनाने के लिए तो उनसे परमिशन ली, जैसे कहते हैं ना NOC लेना, वो NOC लिया। उसके बाद हमने अल्लाह करके मस्जिद शुरू कर दी। अब मस्जिद शुरू की, मस्जिद बन रही है, ठीक है। एक स्टेज आई जिस पे कुछ लोग उसके साथ मिल के, कुछ लोग से मुराद है ये है कि मजहबी जो उनके अज़ाइम कुछ डिफरेंट थे, यहाँ पे जो कब्ज़ा का ज़हन होता है, उन्होंने कहीं देखा कि यार ये तो मस्जिद बन रही है। और साथ हमने वज़ू खाने, ये एक रिक्वायरमेंट होती है वज़ू खाने की मस्जिद की, कि अगर मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ने कोई भी मुसलमान आएगा तो कहेगा यार मैंने वज़ू करना है या गुस्ल खाने में जाना है। हमने पैरेलल उन गुस्ल खानों को भी, वज़ू खानों को भी शुरू कर दिया कि जब हम टेम्परेरी फिनिशिंग से पहले यहाँ शिफ्ट होंगे, क्योंकि हम किसी के घर में टेम्परेरी नमाज़ें अदा कर रहे थे, उस घर को हमने वेकेट करना था, उनसे हमने 2 महीने का टाइम लिया था। अब उसी के पैरेलल हमने जब ये काम शुरू कर दिया तो साथ ही पैरेलल हमने वाशरूमों का काम शुरू किया। तो उन्होंने आकर रुकवा ये दिया कि उनकी नीयत इस तरह की थी कि हम ये यहाँ पे ना किसी तरह ना मेरे बेटे का किसी का यानी माम का घर बन जाए। उस रेफरेंस से उन्हें हमसे एक हफ्ता लिया, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है आप देख लें, हमें लोगों ने पैसे दिए हैं मस्जिद बनाने के लिए, घर बनाने के लिए तो नहीं दिए। अगर आपने करना है तो ये आपकी, इट इज़ अप टू यू। उन्होंने कहा ठीक है हम हफ्ता 10 दिन हमें दे दें। और ये हफ्ता 10 दिन तकरीबन आई थिंक सो के इट इज़ नाउ अप टिल नाउ अबाउट 2.5 मंथ्स हो गए। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक अलॉटी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट ख़रीदने के लिए तकरीबन तमाम तर वाजिबात अदा कर चुके हैं, जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं ये पूरी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मुश्किलात का शिकार हैं। इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा निसार अहमद नाम है। और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो असल में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मैं आपको अपनी छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये सोसाइटी बनी थी 1992 में। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम इन्होंने इस्तेमाल किया। उस वक़्त इन्होंने 532 कनाल ज़मीन ली। उसके बाद इन्होंने 2012-16 में आके इन्होंने इसको नाम चेंज कर दिया और उसके साथ उन्होंने ज़मीन ख़रीदी। और कुछ ज़मीनें जो आप देख रही हैं यहाँ पर, तकरीबन इनमें से 40% ज़मीनें इनके पास है ही नहीं। और हमें ये सुबह शाम यही बताते रहे कि आप लोगों को हम आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। हर 6 महीने बाद हमें यही वाला अलापा इन्होंने राग के अब दे रहे हैं। जबकि हमने सारी पेमेंट की हुई है। हमारे साथ वो लोग भी हैं जो बेचारे फोत हो चुके हैं
ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو 1992 سے انتظار کر رہے ہیں, اور وہ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ہیں جو بیوہ ہیں اور ان کا اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ ہم لوگوں نے جس طریقے سے پیمنٹ کی ہوگی کہ انسٹالمنٹ کے اندر ہم نے اپنی بیویوں کے زیورات بھیج دیے, بچوں کا فیوچر ہم نے اپنا دیکھ کے ہم نے یہاں پہ جگہ لی, اور یہ باپ بیٹا جو ہے انتہائی فراڈی ہیں, اور ان لوگوں نے ہر بندے کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا, اور کم از کم کچھ بندے کو حیا ہو کہ عمر کے اس حصے میں اور جو وہ کام کر رہے ہیں, یہ اللہ کا گھر ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے. یہ 1992 میں اس کی اینٹ لگائی تھی, اور اپنے انہوں نے والد کے نام پہ, یعنی کچھ حیا ہونی چاہیے بندے کو کہ کم از کم کو اللہ کا گھر ہے, کوئی اس کے ساتھ تو فراڈ نہ کرے نا. اب تقریباً آپ یہ اندازہ لگا لیں 7 سے 8 ہزار لوگ ہیں, جن میں سے انہوں نے 300 سے 400 لوگوں کو جو آپ دیکھ رہی ہیں گھر, اور اس میں سے تقریباً 40% زمین ان کے پاس ہے ہی نہیں, اور انہوں نے یہ اب کہہ رہے ہیں کہ 75% ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے. اب آپ کے سامنے آپ خود اسیسمنٹ کر لیں, 4 بندے آپ بلا کے بٹھا لیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں, اب جو بندہ جا رہے ہیں نا, میں ان کے پاس 20 چکر لگا چکا ہوں, اور یہ لوگوں کے پلاٹ جو قبضے کر کے دوسروں کو ان کو کینسل کر کے یہ ان لوگوں کو پھر بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک بندے یعنی میرا پلاٹ ہے وہ کینسل کیا, ٹھیک ہے نا, اور میرا پلاٹ وہ آپ کو الاٹ کر دیا, آپ کا پلاٹ ان کو کر دیا, یعنی اپنی انہوں نے ایک دکانداری لگائی ہوئی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں تو جو ارباب اختیار ہیں جو بھی ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, RDA کا اس میں محکمہ ہے, اور بقایا اسلام آباد والے بھی ہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں, چیف منسٹر صاحبہ, ان سے ہی میری ریکویسٹ ہے کہ کم از کم یہ جو لوگ ہیں, معاملات ہیں ہمارے, آپ یقین کریں کہ میری ریٹائرمنٹ کو 4 دن باقی ہیں, ٹھیک ہے نا, میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. اب بتائیں مجھے میرا ٹھکانہ کیا ہوگا اگر میں ان کے آسرے پہ رہوں. یا اب دیکھ لیں آپ اسلام آباد اور پنڈی میں کرائے کہاں جا رہے ہیں, 50,000 سے اوپر جا رہے ہیں 5 مرلے کے, اور انہوں نے ہمیں بس وہ لگایا ہوا ٹرک کی بتی کے لیے. ہم آپ سے بھی یہ التجا کرتے ہیں کہ ہماری آواز آگے ایوانوں تک پہنچائے. بیٹا آپ بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ فاطمہ. اور یہاں پر آپ کہاں کھیلتے ہیں؟ آپ کو کھیلنے کے لیے یہاں پارکس ہیں؟ نہیں, تو پھر آپ کہاں کھیلتی ہیں؟ ہم کرتے نہیں, گھر پہ بس کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی جھولے وغیرہ نہیں لگے ہوئے آپ کے لیے؟ کوئی پارک نہیں بنایا ہوا؟ نہیں. آپ بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ نور الہدا. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہاں پہ کوئی پارکس وغیرہ نہیں ہے, آپ چاہتی ہیں کہ یہاں پہ پارک بنے؟ جی میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے یہاں پارکس اور اسکولس ہر چیز بنے تاکہ ہم یہاں شفٹ ہو سکیں. یہاں پارکس بھی نہیں ہیں, اسکولس بھی نہیں ہیں, ڈسپینسریز بھی نہیں ہیں, یہاں روڈز بھی نہیں ہیں, ماسکیو بھی نہیں ہیں, اور ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں فراہم کی جا رہی. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ یہاں ہمارے لیے ساری چیزیں فراہم کی جائیں. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عروش ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہاں پر پارکس نہیں ہے, آپ کو کھیلنے میں پرابلم ہوتی ہے, اسکول نہیں ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ پارک بنایا جائے اور اسکول بنایا جائے. یہاں پہ قبرستان بھی نہیں ہے, جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کو دفنایا جائے. میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ جھولے ہوئیں اور قبرستان اور اسکول ہے اور ہاسپٹل ہے. اور جب ہم شام کو یہاں پہ نکلتے ہیں تو سانپ بچھو آ جاتے ہیں روڈ پہ. اور یہاں پہ اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے, جو رات کو کہیں جا بھی سکتا ہے. شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور رہائشی موجود ہیں یونیورسٹی ٹاؤن کے, ان سے بھی ہم جانتے ہیں. سر ہمیں بتائیں, یہ جو یہاں کے ڈیولپر ہیں, جس طرح سے ابھی ہمیں پہلے بھی ایک رہائشی نے بتایا کہ وہ اس میں ملوث ہیں, اور باقاعدہ RDA کا ادارہ بھی اس میں ملوث ہے, اور باقاعدہ یہاں پر ایک بازار گرم ہے. یقیناً پیسوں کے ذریعے ہی ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہوگا جو اس طرح کی کاروائیاں نہیں کی جا رہی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ. سب سے پہلے کوئی نور ٹی وی کا کہ آپ لوگوں یہاں پہ یونیورسٹی ٹاؤن میں آپ نے وزٹ کیا, اور متاثرین کے آپ نے جو ہے نا ویو لیے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ 33 سالہ پرانا پروجیکٹ ہے. پہلے خیبر ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے تھا, جو بعد میں تبدیل ہوا یونیورسٹی ٹاؤن کے نام سے. یہاں پہ 2 جو ہے نا آنر ہیں, عزیز خان اور جمیل خان. یہ جو ہے ہزاروں متاثرین, 7 سے 8 ہزار لوگ ہیں جو متاثر ہیں, جو ٹوٹل اس میں یہاں پر 500 فیملی رہ رہی ہیں. اور یہاں پہ لوگوں کے لیے جو بچے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے نہ تو ایک صرف پارک ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہاں پہ قبرستان کی جو جگہ تھی وہ بھی جو ہے نا بیچ دی گئی ہے. اور یہاں پہ جو اکثر سوسائٹی سمجھ لیں کہ 25 سے 30% جو زمین ہے وہ سوسائٹی کے پاس ہے, اور 70% جو ہے نا سوسائٹی کی جو جگہ ان کے پاس ہی نہیں ہے, کسی اور کے پاس ہے. اور یہ فائلوں پہ فائلیں بیچی جا رہی ہیں, اور لوگوں کو جو ہے نا لوگوں سے پیسے جو ہے ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں, جو یوٹیلٹی چارجز کی مد میں, ایڈیشنل چارجز کی مد میں. اور ایون کہ RDA کا جو ادارہ ہے وہ آج تک سویا رہا ہے. 25 سال بعد اس کو یا 33 سال بعد یاد ہے یہ کہ ہم نے اس کو NOC دی ہے,
लिए और NOC के बिहाफ पे लोगों ने प्लाट लिए, तो अब वो इनसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है ना ये जो है ना जो आपने NOC ली है उसके मुताबिक आप काम नहीं कर रहे। हालांकि आज से पहले कुछ नहीं, और जो RDA का इदारा इसके साथ मुलव्वस है और लोगों के जितने भी मुतासरीन हैं वो RDA भी इनको जो है ना धुतकार रहा है, और यूनिवर्सिटी टाउन की जो इंतज़ामिया है जो बार बार इनके ऑफिस में जहाँ जाता है तो लोग इनको जो है ना लोगों को धुतकार देते हैं, ये कहते हैं कि हम आपका तरबूज बना देंगे, मतलब लोगों को बहुत गलीज़ किस्म की बातें करते हैं और लोगों को हकूक़ नहीं दिए जा रहे, और बार बार लोगों को जो है ना इस किस्म की तकलीफ़ें दी जा रही हैं, जो कि लोग आज तक जो है ना ये मतलब 33 साल हो गए। यूटिलिटी चार्जेस आप कितने पर मंथ कितने पे कर रहे हैं? यूटिलिटी चार्जेस हैं, कुछ लोगों से इन्होंने 2,52,000 भी लिए हैं, किसी से मतलब 1.5 लाख भी लिए। आप लोगों से 5 मरले के पे 7 लाख रुपया जो है ना ये मांग रहे हैं। अगर फिर कहते हैं कि अगर आप ये नहीं देंगे तो फिर हम कैंसिल कर देंगे। और इस बिहाफ पे अभी ये कुछ लोगों को 2-3 लोगों को ने प्लाट दिए भी हैं। ये हम जो हमारी जदोजहद की वजह से कि क्योंकि RDA की वजह से भी प्रेशर था और सुप्रीम हाई कोर्ट की वजह से, अदालतों की वजह से प्रेशर था, ताकि इन्होंने जाके वहाँ पे सबूत पेश करना कि देखो हम लोगों को जो है ना पोजीशन दी है। पोजीशन देने के बावजूद एक औरत है, उसका हस्बैंड का मर्डर हो चुका है, इस वक्त वो नंबर यूनिवर्सिटी की टीचर है और उसका कुछ भी नहीं है। उसको ई ब्लॉक में 9 स्ट्रीट में प्लाट दिया गया है, वहाँ पे खंडरात हैं, कुछ भी नहीं है। उस बेचारी को कहते हैं कि आप जो है 5 लाख रुपया दो, जो कि मतलब इनकी वजह से डिले हो चुका है। 33 साल से इनकी वजह से डिले हो चुका है। अभी तक इन्होंने कुछ जो है ना प्रोजेक्ट आपके सामने है, कुछ भी जो मतलब यहाँ पे रनिंग में नहीं है, और ना तो पानी है, ना तो कब्रिस्तान है, ना स्कूल है, ना पार्क है, मस्जिद है। तो 33 साल 2 मंथ हो गए जो मस्जिद मुतसरीन ने खुद अपने इस बलबोते पे बनाई है। तो ये अस्पताल के बारे में बताएं, अस्पताल है यहाँ पे? अस्पताल जो हमें टर्म्स ऑफ कंडीशन में थी वहाँ पे तो मेंशन था, और यहाँ पे मौजूदा आपको कोई यहाँ पे ना तो कोई डिस्पेंसरी नज़र आएगी, ना तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नज़र आएगा, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को इलाज के लिए तो काफ़ी दूर दराज जाना पड़ता होगा? बिल्कुल, जब तक हम लोगों को यहाँ G11 जाना पड़ता है, पिम्स में जाना पड़ता है, फैसल टाउन में जाना पड़ता है, यहाँ पे कोई मतलब लोगों को सहूलियात नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग बहुत जो है ना परेशान है। मरीम नवाज से हमारी गुजारिश है कि ये जो ना बिल्कुल मोटर वे के सामने है ये सोसाइटी, इस पर एक्शन लिया जाए और लोगों मुतासरीन को जो है ना इनके वो हकूक़ दिलाए जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी टाउन का विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ के रिहायशियों से मिल रहे हैं, अलॉटिस से मिल रहे हैं और उनसे उनके मसाइल जान रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक और रिहायशी यूनिवर्सिटी टाउन के, इनसे भी जानते हैं कि ये किस किस्म के मसाइल फेस कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? राणा मोहम्मद अकरम। सर, जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि ये जो इलाका है सारा बिल्कुल खुला और हर तरफ इतने खुदरो पौधे उगे हुए हैं, लंबी लंबी घास मुझे नज़र आ रही है, और जिस तरह से यहाँ के रिहायशियों ने, बाकी रिहायशियों ने भी मुझे बताया कि यहाँ पर जहरीले जानवर निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बाइस तकलीफ़ हैं। तो आप बताएं, आप ऐसे माहौल में कैसे रहते हैं? आपको यहाँ पर जबकि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, रोड्स भी सही नहीं बने हुए, तो आप लोगों को यहाँ पर रात के टाइम तो काफ़ी खौफ महसूस होता होगा। हमारी तो हम बहुत मुश्किल हालात में रहे हैं। हमारी गली नंबर 6 में हम रहते हैं। हमने 1 साल पहले घर बनाया था, लेकिन ये जो पहले बुनियादी सहूलतें होती हैं उनमें से कोई सहूलत नहीं है। आप देखें जिधर सोसाइटियाँ बनती हैं जंगल में, कोई एक घर भी नहीं होता और प्रॉपर सारी सहूलतें होती हैं, सड़कें होती हैं, स्ट्रीट लाइट होती हैं, पानी होता है, सब चीज़ें। इधर ना प्रॉपर सीवरेज है, ना सड़क है, ना आपकी स्ट्रीट लाइट है, ना पानी है, इवन बिजली भी नहीं है, जैसे आरजी लगी हुई है। कब्रिस्तान है यहाँ पर कब्रिस्तान तो दूर की बात है, मस्जिद भी नहीं है। मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता था, लेकिन मस्जिद में मैं रात को जा नहीं सकता हूँ। बारिश हो जाती है तो हमारी बच्चियाँ बाहर नहीं निकल सकती। इवन दो नौकरी करने जाती हैं, जब बारिश हो जाती है तो हम रोड तक जा नहीं सकते, उनको छुट्टी करनी पड़ जाती है। ऐसे हालात है। और रात को भी अंधेरा होता है, बाहर भी नहीं निकल सकते। घास इतना बड़ा है, सांप का भी डर होता है, सिक्योरिटी भी नहीं है वहाँ। इवन समझे आप जंगल में रह रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं है। इस तरह के हालात हैं। इन लोगों ने बाहर जो सोसाइटियाँ बनती हैं, हर ब्लॉक में एक मस्जिद होती है। यहाँ ए से लेके F तक ब्लॉक है, लेकिन एक मस्जिद भी नहीं बनी है। 4 साल पहले इन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। हम फ़र्ज़ हालांकि मर्दों के घर में होते भी हैं, नमाज मस्जिद में जाके पढ़नी होती है, लेकिन हम मजबूरन घर नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद ना होने की वजह से। या मस्जिद तक जाना हो, छोटी मोटी बनी हुई है, वहाँ तक जाना हो तो हमारा रास्ता नहीं है भाई मस्जिद तक पहुँच सके। इस वजह से हम मजबूरन घर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह जाने उसका सवाब किसको जाता होगा, मालकान को जाता है या क्या होगा, अल्लाह इनको हिदायत दे।
जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर यूनिवर्सिटी टाउन के एक रिहायशी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये सोसाइटी के बारे में हमें क्या बताते हैं और इनको किस किस्म के मसाइल का सामना है। जी सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अरशद हुसैन ज़ुल्मे है और मैं यहाँ कोई 5वां साल है यहाँ का रिहायशी हूँ। सबसे पहले तो कोई नूर टीवी का शुक्रिया कि उन्होंने ये एक बहुत ज़्यादा हम रिहायशियों और अलाटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा अहम मसला, इस्लामाबाद कराची के संगम पे ये एक सोसाइटी वाक़या है और इस वक्त ये RDA से भी अप्रूव्ड हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती है कि एक तरफ कहा जाता है हुकूमती इदारों की तरफ से कि आप इल्लीगल सोसाइटियों में इन्वेस्ट ना करें, लेकिन ये तो RDA से अप्रूव शुदा सोसाइटी है। यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, ना हमारे बच्चों का फ्यूचर है ना हमारा फ्यूचर है। यानी आप इस मस्जिद की हालत देख लें, यहाँ पे ये बच्चे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इस वक्त कोई एक पार्क नहीं है। तो हमने कोई 17 अगस्त 2024 से इज्तिमाई तौर पे जब कोशिशें शुरू की और हम जब इनके पास जो इनके वादे और यकीन दहानियाँ जब हमें लगा कि ये करके नहीं दे रहे हैं, तो हमने जो रेगुलेटर है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमने 17 अगस्त 2024 को इज्तिमाई तौर पे एक डेलीगेशन की सूरत में DG RDA मैडम किंजा मुर्तज़ा से मुलाकात की और उनको इज्तिमाई तौर पे एक दरख्वास्त जमा करवाई और उनकी यकीन दहानियाँ थी कि इंशाअल्लाह ताला ये आपके मसाइल हल हो जाएंगे। 17 अगस्त 2024 से लेके अब तक हमारी उनके साथ कोई दर्जनों मुलाकातें हो गई हैं, कोई दर्जनों हमारे उनके पास लेटर्स, हमने प्रोटेस्ट, मीडिया सब कुछ करने के बावजूद हमें ये लगता है कि शायद रियासत पाकिस्तान में जो रियासती इदारे हैं, जो कानून है, जो आइन है, वो बेबस है, लेकिन जो जमील खान और उसका वालिद अजीज़ खान है वो शायद बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसकी वजह यह है कि RDA जैसा इदारा जिसका NOC इनके पास है और हमने RDA के NOC के बेस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। 3454 कनाल की NOC इनको ग्रांट की गई है, लेकिन उसमें से 1000 कनाल की इनके पास मलकियत ही नहीं है। तो RDA से सवाल होना चाहिए कि आपने किस तरीके से, जब इनके पास 1000 कनाल की मलकियत नहीं है, आपने इनको NOC कैसे अप्रूव किया? और उसकी वजह से जो 1000 कनाल की मलकियत नहीं थी, जो लोग मुतासिर हुए, उनका जिम्मेदार कौन होगा जिन्होंने यहाँ पे अपने करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए? फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब RDA ने इनको NOC अप्रूव किया तो उसके बदले उनसे बैंक गारंटी या कोई मॉर्टगेज प्लॉट 20% इस सोसाइटी का जो प्लॉट्स थे वो RDA के पास मॉर्टगेज करवाए गए। इस कंडीशन पे जब ये सोसाइटी डेवलप होगी तो फेज़ वाइज वो जो प्लॉट्स थे, जो गिरवी रखे हुए हैं, जो मॉर्टगेज है, वो रिडीम होते जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त सोसाइटी 20 से 25% भी डेवलप नहीं है और वो जो मॉर्टगेज प्लॉट्स थे वो सारे इनको रिलीज़ कर दिए गए। और मज़े की बात यह है कि सोसाइटी ने वही प्लॉट्स मुझे दूसरे तीसरे को बेच दिए हैं। अच्छा, जब लोग उन प्लॉट पे घर बनाते हैं और वो जाते हैं RDA के पास नक्शा लेके, तो RDA नक्शा अप्रूव नहीं करता, कहता है आपका प्लॉट तो हमारे पास मॉर्टगेज है। तो जब प्लॉट मॉर्टगेज है तो फिर वो प्लॉट बेचा कैसे गया? तो RDA में आया कौन लोग हैं, ख़ास तौर पे जो MPNT के लोग हैं, वो आया कानून से बालातर क्यों है? उनको किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी का खौफ क्यों नहीं है? उनको किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस का खौफ क्यों नहीं है? अगर RDA नहीं कर रहा है तो जो सेक्रेटरी हाउसिंग है उनका चेक एंड बैलेंस RDA पे क्या है? अगर सेक्रेटरी सोया हुआ है तो फिर मिनिस्टर हाउसिंग जो है उनसे पूछना चाहिए कि इस्लामाबाद पिंडी में यूनिवर्सिटी टाउन के नाम से एक सोसाइटी है और वो सालों से लोगों को चूना लगा रही है, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ लोगों का जो ख्वाब है, जो एक घर बनाने का जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, उसको चकनाचूर कर दिया गया है। तो लिहाजा हम समझते हैं कि इस वक्त पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है और उनकी जो हुकूमत है वो बड़ी एक ट्रांसपेरेंट और सेंटर गवर्नेंस पर, सिटीज़न सेंटर गवर्नेंस पर मुश्तमिल है। हम सोशल मीडिया के ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहिबा को भी बार बार अप्रोच कर चुके हैं। आया वो जो हमारी सोशल मीडिया कैंपेन है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? अगर पहुंच पा रही है तो फिर वो क्यों इस सोसाइटी के हवाले से जो इसके गलत प्रैक्टिसेस हैं, जो फ्रॉड हैं, और यहाँ पे जो इस वक्त 500 रिहाइश रखे हुए हैं, उनके पास इस वक्त ना बच्चों के लिए पार्क है, ना यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम है। कुंडा बिजली पे इस वक्त C और E ब्लॉक के जो घर
ہیں وہ گزارا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ پوری سوسائٹی میں اس وقت 4-4 5-5 فٹ کے جو بنگ ہے یا جو گھاس ہے وہ ایک طریقے سے لگ رہا ہے جیسے کسی گاؤں دیہات میں آئے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے سیکورٹی کا کوئی نظام نہیں ہے، پارک نہیں ہے، پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، فلٹر پلانٹس جو ہے اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ جو پانی ہم پی رہے ہیں آیا وہ واقعی جو ہے وہ صاف ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کو فوری طور پہ انٹروین کرنا چاہیے، نہیں تو ان فیوچر ایک طرف تو حکومت پاکستان اوورسیز کو کہتی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، اس سوسائٹی میں سینکڑوں جو اوورسیز ہیں ان کا سرمایہ سٹک ہوا پڑا ہوا ہے، وہ یہاں پہ بری طریقے سے پسے پڑے ہوئے ہیں لیکن کہیں پہ سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو حکومت پاکستان کے جو دعوے ہیں کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، اوورسیز کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ کریں، اگر ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور ان کے جو پلاٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں تو مزید آپ اوورسیز کو کس طرح انکریج کریں گے؟ لہٰذا یہ ایک بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے حوالے سے ہم ڈیولپر کو نہیں جانتے، ہم تو جانتے ہیں آر ڈی اے کو کہ آر ڈی اے نے ان کو این او سی کس طرح دیا، اور بار بار این او سی دیا، بار بار ان کو جو ان کے لے آؤٹ پلانس تھے وہ ریوائز کیے گئے، اور جو ایل او پی تھے اس میں چینجز کی گئی، اس میں انکروچمنٹ بھی ہوئی ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ایمینٹیز پلاٹ ہے، یہ مسجد کی آپ حالت دیکھ لیں، اس وقت صرف 2 مسجد اور 1 پارک ہمیں پتہ ہے، باقی جو ہمارے ایمینٹی پبلک پلاٹس ہیں ہمیں نہیں ہے پتہ کہ ہمارا اسکول کہاں پر ہے، ہمارا کمیونٹی سینٹر کہاں پر ہے، ہمارا قبرستان کہاں پر ہے، ہمارا ہیلتھ سینٹر کہاں پر ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم یہاں پہ رہ تو رہے ہیں لیکن اس وقت ہماری جو حالت ہے وہ شاید وہ جو گاؤں دیہات میں لوگ رہ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہے۔ یہاں پہ اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو یہاں پہ انٹرنلی فولڈ کر کے بجلی بند کر دی جاتی ہے، اور 16 20 گھنٹے ہم لوگ جو ہے وہ بجلی کے لیے رول رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارا پانی بند کر دیا جاتا ہے، یہاں پہ اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارا جو کچرا ہے وہ اٹھانا بند کر دیتے ہیں، یہاں پہ اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں دھمکایا جاتا ہے، ہمارے خلاف پرچے کروائے جاتے ہیں پولیس میں، ہمارے خلاف جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہے، ہمیں ہر حوالے سے آپ کہہ لیں کہ ہراساں کیا جا رہا ہے، نفسیاتی طور پہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ ہم لوگ یہاں پہ جی رہے ہیں وہ ایک اللہ کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے۔ ہمارے یہ جو بچے ہیں ان کے لیے اس وقت آپ پوری سوسائٹی گھوم لیں، میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت ایک پارک مکمل کنڈیشن میں موجود نہیں ہے کہ وہ بچے وہاں پہ اپنا لیجر ٹائم خرچ کر سکے۔ یہاں پہ بچے جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آگے روڈ پہ کمرشل پلاٹ میں بچے فٹ بال کھیلیں گے، ان کے لیے یہاں پہ ایک پلے گراؤنڈ موجود نہیں ہے، یہاں پہ جو سیوریج ہے وہ سب سٹینڈرڈ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کی ہوئی ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آر ڈی اے آج 2025 میں ڈیولپر سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے جو سروس ڈیزائنز ہیں ان کے اپروول لیں ہم سے، تو آج ان سے ڈیزائن اپروول کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے یہ جو ڈیولپمنٹ کی اجازت دی گئی وہ کس بیس پہ دی گئی، اور آیا اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا کہ جو معیار ہے وہ کس طرح کا ہے؟ لہٰذا ہم کوئی نور ٹی وی کے توسط سے جو اعلیٰ حکام ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب، اور پنجاب کی جو چیف منسٹر ہے مریم نواز شریف صاحبہ، اور اپنے جو منسٹر ہاؤسنگ ہے بلال یاسین صاحب، ہم ان سب سے 10 بدس یہ درخواست کرتے ہیں کہ 11 مہینے سے ہم یہ ساری باغ دوڑ کر رہے ہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، آئین میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، پرامن طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، ہر بار ہمیں لولی پاپ دے دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں کوئی نور ٹی وی کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے مسئلے فوری طور پہ حل نہیں کیے جاتے اور اس پہ حقائق بیس ایکشن نہیں لیے جاتے تو پھر ہمارے پاس روڈوں کا اور ہمارے برابر میں موٹر وے ہے، پھر ہم مجبوراً موٹر وے پر آ جائیں گے، پھر ہمیں موٹر وے بلاک کرنا ہوگا، پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے، اور اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ آر ڈی اے سیکرٹری ہاؤسنگ پر اور اعلیٰ حکام پر ہوگی کہ 11 مہینے میں اگر ہم انصاف مانگ رہے ہیں، ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اور جو وہ حقوق ہے جس کے لیے ہم نے ان کو ڈیولپمنٹ چارجز دیے ہوئے ہیں، ہم نے یوٹیلیٹی چارجز دیے ہوئے ہیں، تو آیا پھر ہمیں وہ حقوق کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ یہاں پہ جو الاٹیز ہیں وہ 20 سال سے اپنے پلاٹ کے اصول کے لیے کیوں جو ہے نا یہاں پہ رول رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس پہ فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے، اور جتنا زیادہ اس مسئلے کو ڈیلے کیا جائے گا تو خدا نہ خواستہ
कोई अमन अमान का मसला न बन जाए। शुक्रिया। उस्मा, मुझे बताएं कि जैसे मैंने ये इस पूरी सोसाइटी का विजिट किया है और मुझे यहाँ पर दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आ रही, इवन रोड्स भी प्रॉपर नहीं बनी हुई। तो अब जैसे लेडीज़ हैं, लेडीज़ को तो होता है ना कि भाई शाम के वक्त में निकलें, कोई थोड़ी सी वॉक कर लें, रिलैक्स हो जाएं, चहलकदमी कर लें, या कोई छोटी मोटी अगर कोई शॉपिंग करनी हो तो बाहर निकल जाएं। लेकिन यहाँ पर तो शाम होते साथ बिल्कुल घूप अंधेरा हो जाता होगा, प्लस आपके कोई गेस्ट्स वगैरह आ जाएं या आपको किसी काम से बाहर जाना पड़ जाए, तो रात में तो मेरे ख्याल से यहाँ निकलना बहुत खौफनाक और ख़तरनाक किस्म का नहीं होता होगा? क्योंकि ज़ाहिर है छोटे छोटे जानवर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर निकल आते होंगे, तो क्या कहेंगी? नहीं, यहाँ पे बाहर निकलने वाला तो कोई चांस ही नहीं है। आप बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे वैसे भी मतलब सांप वगैरह इस तरह की चीज़ें, उनका बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है हर वक्त। तो बाहर तो कोई सिचुएशन ही नहीं है। आप वॉक के लिए नहीं निकल सकते, कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, आपको बाहर जाना है तो आपको सदरवाई साइड पर जाना पड़ता है, जो कि बहुत दूर है यहाँ से। यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जो सीरियस बात है ना। यहाँ पर आप रोड्स देख रहे हैं, रोड्स का कोई हाल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, यहाँ पे हमारा तो खैर बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, गैस तो सिरे से पूरे यूनिवर्सिटी टाउन में नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पे। और इन्होंने कहा था कि रोड्स ये लोग बना देंगे ऑलमोस्ट जून तक या मई तक, लेकिन वो सब फजूल बातें हैं, कुछ भी नहीं किया। कुछ सिंगल एक कोई एक्टिविटी होती है वो भी नहीं की। इवन आप घास वगैरह देख सकते हैं, बच्चों का तो बहुत अनसेफ है कि बाहर उनको निकाला जा सके, बहुत बुरे हालात हैं। प्लस यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से बताएं, सिक्योरिटी इशूज़ भी यहाँ पे होते होंगे काफ़ी ज़्यादा? यस, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आपने बाहर जाना है तो आप अपने ओन पे जा रहे हो, मतलब आप अपने घर को अपने ओन पे ही छोड़ के जा रहे हो। अभी ईद पे रिसेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं यहाँ पे, चोर वगैरह पकड़े गए हैं और लोगों के कैमरास थे तो वो डिटेक्ट हो गए हैं, लेकिन इनकी अपनी सिक्योरिटी निल है, ज़ीरो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है। आप क्या कहना चाहेंगी सोसाइटी के हवाले से? जैसे अभी हमें उस्मा ने बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं, प्लस यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, ख़वातीन के लिए ऐसा कंफर्टेबल माहौल नहीं है कि वो बाहर निकल सकें, वॉक कर सकें, इवन शॉपिंग प्लाजा यहाँ पर कोई नहीं है, आप लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये सारे मसाइल आप कैसे फेस करती हैं, कैसे रह रहे हैं? शॉपिंग मॉल या मस्जिद या ये चीज़ें तो थोड़ी दूर की हैं। सबसे पहले आप सिक्योरिटी देखते हैं ना, जिस जगह पे भी जाते हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ से जहाँ से आप मेन गेट से अगर आए हैं वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब कोई भी गाड़ी आ रही है ना, बगैर उसका यूनिवर्सिटी टाउन का स्टिकर नहीं लगा हुआ, वो नहीं देखते हैं, सीधा उनको अंदर आने देखते हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई अगर यहाँ से कोई चीज़ चुरा के भी लेके जा रहा है ना, तो वो नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में सबसे पहले आती है। उसके बाद बाकी इन्होंने चीज़ें, ज़ाहिर है इन्होंने वादा किया था कि डेवलपमेंट करेंगे, स्ट्रीट्स वगैरह बनाएंगे, लाइट्स लगाएंगे। उसके अलावा मस्जिद देखें, बहुत ज़रूरी है। आप मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो मस्जिद तो होनी चाहिए। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है मेरा नहीं ख्याल जिसमें मस्जिद ना हो। तो यहाँ पे इस कदर इतने बुरे हालात हैं। फिर आप घास देख लें, यहाँ पे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, आए दिन यहाँ पे सांप लोग मार रहे होते हैं। फिर बारिश हो जाए तो आप सोचें कि यहाँ से आपने मेन रोड तक आप नहीं जा सकते, ये हालात हैं। अब जो लोग यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं या जॉब पे भी इवन जो लोग जाते हैं, वो किस तरह जाएं? यहाँ से गुजरने का भी रास्ता नहीं होता। ये तो फिर इन्होंने अभी थोड़ी बजरी फेंकी, वरना इससे पहले तो ऐसे हालात है कि आप पाँव रखें तो आपका पाँव अंदर चला जाए मट्टी के। तो ये हालात हैं यहाँ पे। बस ये लोग वादे करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। हमें अभी यहाँ पे आए हुए 1 साल हो गया, लेकिन हमने ये प्लॉट जो है वो 3 साल पहले लिया था। तो इन्होंने यही कहा था कि आप बस घर बनाएं, हम आपको सारी सहूलतें यहाँ पे फराहम करके देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारे चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगी? बस यही अपील है हमारी कि आप प्लीज़ इस यूनिवर्सिटी टाउन के ऊपर भी थोड़ा गौर करें और इनको थोड़ा सा दबाएं कि यहाँ पे कोई काम कर सकें, या वरना यहाँ पे तो हालात नहीं है रहने के। क्या नाम है आपका? गजाला शाहीन। जी गजाला, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से मैंने अभी ये पूरी सोसाइटी का विज़िट किया और यहाँ पर मैं काफ़ी सारे रिहायशियों से भी मिली हूँ, सब कह रहे हैं कि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर तमाम तर रिहायशी सहूलियात मौजूद नहीं हैं और हर तरह के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर किस तरह से रहती हैं जबकि यहाँ ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना रोड्स बनी हुई हैं, ना यहाँ पर स्कूल है, मस्जिद है, ना पार्क है, कुछ भी नहीं है? तो आप किस तरह से बेयर कर रही हैं ये सब कुछ, और आप क्या कहना चाहेंगी इंतज़ामिया के हवाले से? पहली बात तो ये है कि हम बहुत मुश्किल से यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिजली का इतना इशू है कि लाइट हर टाइम अप डाउन 150 तक इसके जा रहे हैं यूनिट्स। तो इतना कम इतनी लाइट आ रही है कि एसी तो चल ही नहीं रहा है, और हम 2 से 3 बार तो नहाते हैं दिन में। इतनी गर्मी आपको पता है,
उसके बाद गैस है, गैस यहाँ पे है नहीं है, सिलेंडर से आपको पता है कि हम लोग को बहुत डर लगता है। और मेरी सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद में गुजरी है, कैपिटल में मैं रही हूँ, यहाँ पे पिंडी में तो बहुत मुश्किल है, आपको पता है ये पिंडी में आ रही है, तो यहाँ पे गैस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। स्ट्रीट लाइट्स आप देख लें यहाँ पे नहीं है। गाय ने मेरे बच्चों को मारा है क्योंकि वॉल बाउंड्री नहीं है, वो दोनों मेरे बेटे ज़ख्मी हो गए थे, और एक दफ़ा तो सांप मेरे घर के अंदर आ गया है। इस तरह के इतने ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज़ हैं कि स्कूल, मस्जिद, पार्क, जो मेन चीज़ है ना मस्जिद, वो भी यहाँ पे नहीं है। कि बच्चे जाहिर सी बात है पारा पढ़ते हैं, आदमी मस्जिद में जाते हैं नमाज के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पे प्रॉपर निज़ाम है ही नहीं कि हम लोग कहें कि यहाँ हम ये सोसाइटी रहने के काबिल है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमने ये घर बेच के चले जाएं। ज़ाहिर इंसान है, हमने अपनी पूरी जमा पूंजी यहाँ पे लगा दी है, ना मुझे ससुराल वालों ने कुछ दिया ना मैके वाला नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपना पेट काट के, मेरे हस्बैंड ने, वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, हमने ये घर बनाए। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता ना कि यहाँ आने से पहले तकरीबन 4 मंथ्स हुए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए, कि अगर ये इश्यूज़ आते तो मैं शायद कभी भी यहाँ पे घर नहीं बनाती। तो आप हमारे चैनल के तवज्जो से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगी? तो हम यही अपील करते हैं खुदारा कि हमारी दादरसी की जाए, हमारे मसाइल को हल किया जाए, हमारा डेवलपर चेंज किया जाए, क्योंकि हम लोग ना जैसे किसी इंसान गांव में रहता है ना, यहाँ के हालात तो किसी गांव से भी बदतर है। हमारा तो गांव भी इससे बहुत अच्छा है। जी सर, यहाँ पर क्राइम की सूरत हाल के हवाले से बताएं, क्योंकि बिल्कुल सुनसान बेआबान इलाका है, यहाँ पर कोई लाइट्स वगैरह नहीं है, रात के टाइम घुप अंधेरा हो जाता है यहाँ पर, तो क्राइम की क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्राइम की सूरत हाल यह है कि सबसे पहले जब मैंने ये मकान शुरू किया तो हमारे साथ जो है ना यही स्टेज हुई थी कि यहाँ पे डाकू आए, हमें कमरे में बंद किया और हमसे तकरीबन कोई 26,000 की डकैती उन्होंने की है। ये तो इनका ये हाल है कि सिक्योरिटी ना होने के बराबर है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी भी मैंने इनको कई दफ़ा बताया है कि भाई लाइट का इंतज़ाम करो, यहाँ गेट लगाएं। मेरे ख्याल में 5 साल से अभी जी आज करेंगे कल करेंगे इस पर टरका रहे हैं, और आपके सामने ये एरिया पड़ा हुआ है इसी तरह अल्लाह के आसरे पे, बस अल्लाह के आसरे पे हम सब फिर रहे हैं। जी नाज़रीन, आप ये मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा ये इन्होंने डिगिंग की हुई है। यहाँ पर उस डिगिंग की वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी है जो खड़ा हो गया है कि बाकायदा एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है, और इस गंदे पानी से मच्छरों की अफजाइश होती है जो कि डेंगू का सबब बन रही है। यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं, और ना सिर्फ मच्छर बल्कि इस पानी में जहरीले जानवर भी परवरिश पा रहे हैं, जैसे सांप, बिच्छू वगैरह। वो यहाँ से निकलते हैं, लोगों के घरों में घुसते हैं और उनके लिए नुकसान का बाइस बन रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशी खौफजदा भी बहुत होते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों का तदारुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जो ये पूरा यहाँ पर ये डिगिंग हुई हुई है, इसको भरना चाहिए, इसकी भराई होनी चाहिए, ये पानी का निकास होना चाहिए, ताकि यहाँ पर ये लोग बीमारियों से महफूज रह सकें, मच्छरों से महफूज रह सकें। हमने नाज़रीन इस पूरी सोसाइटी का विज़िट किया, यहाँ पर हमने यहाँ के रिहायशियों से बात की, जो अलॉटिस थे उनकी बात की, हमने आपको पूरा सर्वे करवाया, यहाँ की गली मोहल्ले सड़कें आपको दिखाई। यहाँ पर किसी किस्म का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है, ना यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, या ना यहाँ पर हस्पताल है, ना कब्रिस्तान है, ना पार्क्स हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, और यहाँ के रिहायशी बे इंतहा मसाइल का शिकार हैं। तो यूनिवर्सिटी टाउन को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसके ऊपर फिलफौर एक्शन लेते हुए यहाँ पर इंतज़ामिया को हरकत में आना होगा, और यहाँ के जो डेवलपर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि यहाँ के रिहायशियों को उनके बुनियादी हकूक़ फराहम हो सके, और जिन मुश्किलात का वो साल से शिकार हैं उनका अजाला किया जा सके। तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, CM पंजाब को चाहिए कि वो इस पर फिलफौर एक्शन लें, और इस सोसाइटी के क़याम के हवाले से यहाँ के रिहायशियों को आसानियाँ फराहम करें, ताकि वो यहाँ पर, क्योंकि कोई भी इंसान जब कोई घर बनाता है, अपने लिए ज़मीन ख़रीदता है, वहाँ पर अपने घर की बुनियाद रखता है, तो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उस पर लगा देता है, और सिर्फ इसलिए लगाता है कि उसका मुस्तकबिल, उसके बच्चों का मुस्तकबिल सेफ हो सके। और आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में, जिस तरह से घर बनाना बे इंतहा मुश्किल हो गया है, तो ऐसे वक्त में ये लोग जितनी परेशानियों का शिकार हैं, और इन्होंने अपने पेट काट कर जिस तरह से यहाँ पर घर बनाए हैं, और अब ये चाहते हैं कि इनको सहूलियात फराहम की जाएँ, तो ये इनका बुनियादी हक़ है जो इन्हें मिलना चाहिए। तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर फिलफौर एक्शन लेते हुए यहाँ जो डेवलपर्स हैं उनका एहतसाब करना चाहिए, और इन लोगों को रिलीफ फराहम करना चाहिए। यहाँ पर मेरे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आयशा महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।